Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's jump straight to today's topic. So, today we will be covering jet streams. टुडे विल बी अ शॉर्ट क्लास और ये मजाक नहीं, इस बार सही में शॉर्ट क्लास ही होगी क्योंकि आई एम हैविंग सम डिफ़िकल्टीज इन फिक्सिंग द सेटिंग्स ऑफ अ कैमरा। तो देख लेना वीडियो कैसी आएगी, आप भी देख लेना थोड़ा। सो नाउ स्टार्टिंग विद जेट स्ट्रीम्स। In the previous classes, I have told you there are some particular kind of factors that are affecting the flow of the wind, and especially the ground winds. There are number of factors involved, like द फेमस कोरियोलिस फोर्स। इसको रिवाइज करते रहना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर टेम्परेट साइक्लोन्स एज वेल एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो देयर वी विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। Frictional force and the main force for the flow of the winds, that is pressure gradient force. So these are the three forces that impact or that have the effect in the flow of the ground winds. But what about upper winds? So yes, one particular aspect will get cancelled, the frictional force. वो बस ground पे ही हमें दिखता है. So the rest two, the Coriolis force as well as the pressure gradient force will act on the winds that are flowing in the upper atmosphere. Now, if we consider the situation of the ground wind, these three forces will act perpendicular to one another. आपने फिजिक्स में ऐसा वाला डायग्राम देखा होगा. So x y z axis, pressure gradient, Coriolis and frictional. Now in the upper atmosphere part, the frictional force is cancelled. So now in the upper atmosphere part, the pressure gradient force will equalize the effect of the Coriolis force. मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? Because normally the winds will flow perpendicular to pressure gradient force. So this can be a statement in your UPSC prelims that winds will always flow perpendicular to the pressure gradient force. So this is correct or not? No, this is not correct. That's why we are studying the jet streams. So always word is wrong here. अगर ये वाली स्टेटमेंट आ जाए, winds generally flows in perpendicular to the pressure gradient force. So yes, it is correct. So now we are talking about jet streams. So in the upper atmosphere, the flow of the winds will be guided by pressure gradient force and Coriolis force. As there is no frictional force, the Coriolis force will equalize the impact of pressure gradient force, and hence in the upper atmosphere, a particular kind of winds known as geostrophic winds will flow in parallel to the pressure gradient force. So these will flow in the upper atmosphere and with parallel to the pressure gradient force. So that's why that always statement is not correct. And one such example of geostrophic winds is the jet streams. Understood? Now there are number of characteristics of this jet stream. तो थोड़ी characteristics देखते हैं. And this is the holistic topic. इसमें हम कोई subdivision नहीं करने वाले. And moreover, we have studied something about jet stream in the Indian monsoon, the regional winds, if you remember correctly. So थोड़ी सी इसकी characteristics की बात कर लेते हैं. The jet streams will flow over the areas which have the huge difference in temperature. So equator पे होगा या नहीं? Revise your previous classes. Equator पे can we find the jet stream? No, we can't find. Why? Because both the air masses, or आप winds बोल लीजिए, have the same level of temperature. So now more going towards the poles. So in the subtropical
इक्वेटोरियल लो तो सब ट्रॉपिकल हाई. सो ऑन द सब ट्रॉपिकल हाई, yes, I have told you when I was discussing I think the fronts, मैंने आपको थोड़ा सा फ्रंट्स बताया था. तो फ्रंट्स की एलिजिबल कंडीशंस क्या थी? देयर विल बी कॉन्ट्रास्ट इन द टेम्परेचर्स, तो देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर मासेस और द विंड्स, तो वहाँ फ्रंट्स होंगे. एंड एंड द सेकेंड थिंग इज देयर विल बी द कन्वर्जेंस ऑन द ग्राउंड लेवल. तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताई थी. तो उसमें से मैंने आपको ये भी बताया था फ्रंट्स क्यों इवॉल्व होते हैं सब पोलर पे और क्यों इवॉल्व नहीं होते नीचे इक्वेटर पे या ट्रॉपिकल्स में. क्यों? बिकॉज दीज टू कंडीशंस विल गेट फुलफिल्ड इन सब पोलर जोन, सब पोलर लो प्रेशर जोन. सो इसीलिए वो उधर ही बनते हैं. अब यहाँ देखिए जियोस्ट्रॉफिक विंड्स में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ. यस, द फर्स्ट पॉइंट इज सेम, देयर विल बी द कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द टू एयर मासेज और टू विंड्स. सो ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? हमें सब पोलर पे भी मिलेगा और हमें ये ट्रॉपिकल पे भी मिलेगा. तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो जाता है? डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि हमें अपर लेवल पे, एक मिनट, सो वी आर एट जियोस्ट्रॉफिक विंड्स. मैं आपको बता रहा था कंडीशन. तो हमने पहली कंडीशन क्या देखी है? यस, देयर विल बी डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस इन द टेम्परेचर. एंड द सेकेंड थिंग, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इन द फ्रंट्स पार्ट, यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. सो वेयरएवर we will find the difference in temperature between two air masses, there we can find the jet streams. So if I draw the diagram, वही अर्थ वाला, so this is the earth diagram. As you can see, we don't find anything at the equator, but yes, we will find at subtropical as well as subpolar level. So these are the number of jet streams that can be formed around the earth. तो हमने क्या क्या सीख लिया? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ऐसे विंड्स हैं विच फ्लोज पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी थी करेक्ट और नॉट की कैसे आ सकती है यूपीएससी में. वन सच एग्जाम्पल ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स इज द जेट स्ट्रीम्स. अब जेट स्ट्रीम्स होती क्या है? दीज आर द फ्लो और एनवलप ऑफ एयर दैट इज रोटेटिंग इन अ सर्कमपोलर मैनर. सर्कमपोलर आप देख रहे हैं, एंड जनरली इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट टू ईस्ट. तो हमेशा ये वेस्ट टू ईस्ट, जनरली वेस्ट टू ईस्ट इसका फ्लो होगा. So as you can see, these are not the minor weather phenomena but the major phenomena. कहाँ पाई जाती हैं? हाँ जी, सी लेवल से 14 से 18 किलोमीटर ऊपर तक ये पाई जाती हैं. तो 14 से स्टार्ट हो गए 18 तक ये जाती हैं. सो यू कैन इमेजिन दीज आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन द लेंथ, हंड्रेड्स इन द विड्थ एंड सम किलोमीटर इन द डेप्थ पार्ट ऑल्सो. सो इतनी बड़ी ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं. जहाँ भी जाती हैं ये जेट स्ट्रीम्स, दे विल change, improve, adapt the regional climatic conditions. इतनी बड़ी चीज़ें तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही ऑफ कोर्स. ले एक और आप करेक्टरिस्टिक्स देख पा रहे हैं यहाँ. these have the meandering effects. So a fully developed jet stream will always have a meandering effect. So इसी से आप इसके डेफिनेशन बना सकते हैं. these are the flow of air or winds that is in the upper atmosphere rotating earth in a circumpolar manner and having a meandering effect.
और इसके आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जनरली. The next points are, these are number of jet streams that I have drawn. The first is the polar jet stream or polar front jet stream भी बोल सकते हैं. Why? Because these are the regions where fronts are also developed. So polar jet stream or polar front jet stream. This is the, we have studied this particular jet stream, that is subtropical वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. और इसी का मैंने सब पार्ट क्या बताया था, डेट विल इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून्स, डेट इज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सोमालियन जेट स्ट्रीम. सो इफ यूपीएससी कैन गिव यू वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन द प्रीलिम्स दैट all jet streams will have a flow from west to east, it is correct or not? It is absolutely wrong, because revise the Indian monsoon part. So these two in both the hemisphere, these are subtropical westerly jet stream, and these two are the polar front jet stream. Another type of jet stream we have, that is the polar night. So इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. Before that, these jet streams are more powerful and more prominent whenever the difference or contrast between two temperatures are very huge. And we all know in winters the contrast or difference in temperature is very huge. So that's why these jet streams will be more prominent, will be more stronger in the winter season. Understood? ज़्यादा कंटिन्यूस कब होंगी, जब ज़्यादा पावरफुल है, तो विंटर में ज़्यादा कंटिन्यूस होंगी ये सारी. The path that a fully developed jet stream will adapt, that is the meandering part. तो इस meandering path को ही बोल दिया गया है Rossby waves. So आप कंफ्यूज मत होना इन सारे वर्ड्स में. Now coming to the importance of these particular two things, the subtropical westerly jet stream, in the previous section I have told you this play a huge part in the Indian monsoon. The second is the polar jet stream. The polar jet stream में क्या होता है? Yes, the first thing is, आप नोटिस कर सकते हैं, these are known as polar front. So front के origin भी यही है, fronts मतलब temperate cyclone basically, and जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो भी यहीं फ्लो होती है. तो ये टू कंडीशंस हमने देखी. कौन से प्रेशर बेल्ट है ये? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की. तो इंपॉर्टेंस क्या है ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स की? देखिए, देयर विल बी अकरेंस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स इन द पैसिफिक रीजन, इन द अटलांटिक रीजन. सो दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम्स क्या करेंगे ये? हाँ जी, ये इंटीरियर्स ऑफ कैनेडा, इंटीरियर्स ऑफ यूएसए, इंटीरियर ऑफ यूरोप, इस टेम्परेट साइक्लोन को जो सी पे ओरिजिनेट हुआ है तो वो कहाँ ले जाएंगी? इंटीरियर्स में. सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम. फ्रंट वहाँ उत्पन्न हुआ. इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स वी विल बी डीलिंग विद टेम्परेट साइक्लोन, डेट इज फ्रंट्स. तो जो फ्रंट थोड़ा सा बाहर या कोस्ट लाइन पे उत्पन्न होता है, कोस्ट लाइन पे स्टार्ट होता है, उसको इंटीरियर में ले जाने का काम करती है. सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मैंने आपको एक तो बता ही दिया है. सेकंड क्या है? यस, दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. इन्हीं को बोला जाता है? नहीं. द विंटर रेनफॉल दैट इज हैपनिंग ऑन द इंडियन सॉइल्स, that is nothing called but western disturbances. So there are two things that this subtropical westerly jet stream will serve with respect to Indian climate. The first one is from the taking the moisture from the Caspian Sea, then Mediterranean Sea, Black Sea. So taking up the moisture from that particular region, it will come and do a downpour in the winter season at the North India. So that is the winter disturbance. Also ये क्या करेगी? ये करेगी snowfall in the Himalayas. So उससे क्या होगा? Yes, our perennial rivers will get a huge life, क्योंकि आगे आने विंटर्स के आगे आएगा समर्स. सो समर्स में these ice caps will melt and give flow to the rivers. So these are the two main important things of
सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. Coming to the third part, the polar night jet stream. So these particular jet stream are very harmful for our earth. क्यों? Because this will cause the ozone depletion. How? देखिए मेन चीज़ तो हम ही है. The humans are sole responsible for the depletion of ozone layer in the stratosphere. पर वो हो कैसे रही है? Yes, we are emitting the brominated hydrocarbons, the fluorinated hydrocarbons, CFC, PFC. सो हम ये सारे एरोजोल्स ये सब एमिट कर रहे हैं. कहाँ कहाँ होते हैं? पेंट इंडस्ट्री, देन कूलेंट इंडस्ट्री, AC इंडस्ट्री, वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री. सो फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज वी आर एमिटिंग these harmful chlorinated brominated substances in the atmosphere. Now this particular polar night jet stream will take these, क्या बोलेंगे इनको, particles of aerosols from troposphere to the stratosphere. ओजोन लेयर का है इन द स्ट्रेटोस्फीयर. सो दस इट इज हार्मिंग आवर ओजोन लेयर. अंडरस्टूड? सो आई थिंक इतना ही था जेट स्ट्रीम में. तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी होती है. सो आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं क्योंकि अगर बेकार निकल गया टॉपिक तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आएगा. बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ. सो द नेक्स्ट चैप्टर वी आर स्टडिंग वी विल बी द ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी और ये सब हम पढ़ेंगे. तो ह्यूमिडिटी होती क्या है? Yes, the amount of water present in a given parcel of air is known as humidity. तो इसी के 2-3 सब पार्ट्स हैं. क्या क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कल आराम से अच्छे से पढ़ेंगे. आई एम गिविंग यू जिस्ट ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक. फिर क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर है हमारे पास, उसमें कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर आप वो सह सकता है. तो इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. कोई भी टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस या एयर है हमारे पास, उसमें कितना वाटर स्टोर हो सकता है या वाटर वेपर वो कितना होल्ड कर सकता है, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. फिर एक चीज़ होती है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी. एंड ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. इट मीन्स अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाती है. ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती क्या है? कितना होल्ड कर सकता है कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर, उसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी. तो समर्स में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. विंटर्स में घट जाएगी. इफ़ वी आर टॉकिंग इन अ डे, सो आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा होगी 1-2-3 बजे के आसपास, और सबसे कम अर्ली मॉर्निंग. तो 3, 4, 5 इस टाइम के अराउंड सबसे कम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगी. देन क्या आता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाता है. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ते हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी. सो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ये सब हम देखेंगे. उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर वाटर वेपर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस में पूरे उसका फुल पोटेंशियल तक प्रेजेंट है, मतलब एब्सोल्यूट रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% हो गई है तो उससे क्या होगा? अभी कंफ्यूज हो रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली क्लास में अच्छे से समझा दूंगा. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस है, इसकी जो कैपेसिटी है ह्यूमिडिटी होल्ड करने की, वो पूरी कैपेसिटी हमने 100% फिल कर दी. सो हम क्या बोलते हैं? यस, द एयर इज सैचुरेटेड. और जिस टेम्परेचर पे होगी उसी को बोल दिया जाता है ड्यू पॉइंट. सो दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, इफ यू आर लाइकिंग द concepts, if your concepts are getting clear, please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय. जय हिंद.